The idea behind coming together was to bring all the faculties and tell you that we are going to deliver the lectures in the coming months in a very structured manner. The journey of UPSC has its own ups and downs. We believe in old school process of mentoring the student, making sure that we are there till the end of the journey. चीजें बहुत लॉजिकल है इंडियन पॉलिटी की। ऐसा एक भी सोचिए, कॉन्स्टिट्यूशन जब कोई बनाता है तो कितनी बड़े लोगों ने पूरा लॉजिक लगा के बनाया होगा। यूपीएससी में ना ड्रॉ नहीं होता, या तो आप हारते हैं या जीतते हैं। इसलिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यू शुड प्ले फॉर विक्ट्री, नॉट फॉर लूजिंग द गेम। इससे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, स्टूडेंट का यूपीएससी क्यों नहीं निकलता? कभी आप लोगों ने सोचा है फाउंडेशन बैच? जनरली फाउंडेशन बैच कंप्लीट करने में कितना समय लगता है? 1 ईयर एट मैक्स, 9 मंथ्स टू 1 ईयर। अपने दोस्त लोग से जाके पूछिए जो 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनसे पूछिए आपका फाउंडेशन कंप्लीट है? वो बोलेंगे यार इकोनॉमिक्स पढ़ना है, कोचिंग कहीं और की, रेफरेंस बुक कहीं और करें, यूट्यूब के लेक्चर कहीं और देखें। जब हम लोग पढ़ते थे तो कहा जाता था कि मुखर्जी नगर में आना बड़ा आसान है, यहाँ से वापस जाने का जगह नहीं होती, या तो एकेडमी जाएंगे या फिर कहाँ जाएंगे। I have brought teachers who will be taking the core subjects. The senior among all, the JKP sir will take Indian polity. I'll be taking Indian economy. Mansesh sir already taking geography. Vineet sir will be taking history, and Appu sir will be taking the science and tech part. So, first of all, thanks for the time that we are taking you. We'll be discussing 5-10 minutes about preparation for the next few months, because the journey has started and it is going to go on for the next 1 year, right? The idea behind coming together was to bring all the faculties and tell you that we are going to deliver the lectures in the coming months in a very structured manner. The journey of UPSC has its own ups and downs. We believe in old school process of mentoring the student, making sure that we are there till the end of the journey. The process is long. इस journey में ups and downs भी रहेंगे. And as there's a whole team of people who will be taking different subjects. I have brought teachers who will be taking the core subjects. Okay. So for example, the senior among all, the JKP sir will take Indian polity. I'll be taking Indian economy. Mansesh sir already taking geography. Vineet sir will be taking history, and Appu sir will be taking the science and tech part. Broadly, UPSC and geography and environment, Mansesh sir. So broadly in UPSC journey, we have the 4 core foundational subject: polity, economy, history, geography. One more, ethics sir, Vikram sir could not come because of his engagement at some place. So now the idea is to discuss that what we'll be doing in the coming months, how would you approach it. So the first approach of taking the classes would be again developing the foundation part. Why I'm telling this, that in the present era of so much social media and inputs that you're getting, बहुत सारा misinformation and gaps हैं. One misinformation and gap is that student, is facing a problem of FOMO, fear of missing out. जहाँ ऐसा लगता है कि हमको इतना सारा मिल रहा है, हम सब क्या क्या पढ़ लें. Well, you have to be very clear that this exam is about foundation, developing your basics. So first, we are going to cover the core foundational subject, that is polity, economy, history, and geography. Now, these subjects in totality cover almost more than 2/3 of the prelim syllabus and more than half of the UPSC syllabus in general. तो ये बात की समझ आपको होनी चाहिए. And UPSC would like that anybody sitting in any part of India should be able to crack the exam. They would not specifically want that somebody sitting in ORN should have better access to the the selection process. तो इसलिए हमारा फाउंडेशन जो है डेवलप होगा बेसिक किताबों से, प्राइमरी सोर्सेज विच वी ऑलरेडी एम्फसाइज्ड. यस, द क्लासरूम टीचिंग वुड मेक श्योर दैट थिंग्स आर टेकन फ्रॉम बेसिक टिल एडवांस. दैट पोस्ट क्लास आपको कंटेम्प्रेरी इश्यूज को देखना ही पड़ेगा, उसके बियॉन्ड बहुत जाने की जरूरत नहीं है. हाउएवर, we still emphasize that we are going to cover the basics, that is NCERTs. There will be regular test on the topics that we are going to cover, that we already doing, और coming weeks में उसकी frequency बढ़ेगी. As the journey would proceed, November onwards, mid-November onwards, or you can say first week of December onwards, हम लोग prelims के foundational subject तब तक हम लोग कोशिश करेंगे maximum आपके हो जाएं, so that we can start. The people who are targeting prelims next year, वो हम 4-5 months का हमें preparation window भी मिले. So that is where we are going to cover these areas, and I'll ask sir, every faculty will speak for 2 minutes telling about the importance of the subject and how they're going to cover their area. That is the first academic part that we are going to do here. The second part is the post-class support.
Now, as people who are already studying, they will understand, and although people who are new also, probably they'll understand in the coming days, that हमारा post class support पे बहुत focus रहता है. Personalized mentoring, you can reach out to us anytime. The faculties are not here just just for the sake of fulfilling the quorum, but faculties are here to make a real difference in the process. आपकी journey worthwhile हो, और आज से 1 साल 2 साल बाद जब आप एग्जाम देते हैं, you should have the strong feeling from inside कि मेरे साथ एक basic justice हुआ है, and the faculties and mentors, they have done their bit. So the faculties here would be mentoring the journey in general. And एक और छोटी सी बात है जो मैं आपसे कहूँगा, emphasize करूँगा, और जो आपको ध्यान भी देनी है, that at least for the coming 4 months हमारी बात सिर्फ मानिए. Just listen to our inputs. अपनी बुद्धि का इस्तेमाल अभी मत करिए, क्योंकि यहाँ पर एक्सपीरियंस जोड़ लें तो हम लोग का एक्सपीरियंस 50 साल से ऊपर, हम सब लोग मिला लें तो 50-60 साल का हम लोग का इंडिविजुअल एक्सपीरियंस जोड़ लें तो 50+ हम लोग का एक्सपीरियंस सिर्फ टीचिंग का है. सो लेट्स, मुझे तो 14 ईयर हो गया, विनीत सर का 16 ईयर हो गया, मनसेर सर का भी 12 ईयर से ऊपर हो गया, राइट? सो जब हम अपनी बुद्धि से चलते हैं तो बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, बिकॉज देयर इज, एज आई सेड, प्रिपरेशन जर्नी लंबी है, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन गैप्स रहेंगे, एंड सोशल मीडिया आपको फीड कर रहा है, एंड इट इज चेजिंग यू एंड फॉलोइंग यू ऑल्सो. अगर आप सोशल मीडिया को फॉलो कर रहे हैं तो उसमें सही इन्फॉर्मेशन भी है, बट हाउ डू यू नो दैट ये इन्फॉर्मेशन मेरे लिए सही है? हर एस्पिरेंट की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है. सो कॉमन फीड विल नॉट वर्क फॉर एवरीबडी. यस, अप्रोच इन द बिगनिंग माइट बी सेम फॉर ऑलमोस्ट, सब बेसिक बुक पढ़ रहे हैं, सब बेसिक न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं. सो एज अ, हम लोग ये चाहते हैं कि ये जो जर्नी है इसमें आप गलतियां ना करिए, स्पेशली इन द कमिंग 1 ईयर 1.5 ईयर ऑफ द जर्नी. अगले 1-1.5 साल में अगर आप गलतियां नहीं करोगे, प्रोसेस सही से फॉलो करोगे, थिंग्स विल वर्क. यहाँ पे सभी लोगों ने यूपीएससी का इंटरव्यू दिया है. वी हैव फेस्ड इंटरव्यू मल्टीपल टाइम्स, और सर तो सिलेक्टेड है, ठीक है, तो इंटरव्यू भी दिया हुआ है, सिलेक्टेड लोग हैं. तो हम लोग का एक जो विजडम है या फिर जो एग्जाम का अंडरस्टैंडिंग है, एंड ऑल्सो आफ्टर दैट हम लोग जो टीचिंग कर रहे हैं, बच्चों को गाइड कर रहे हैं, मेंटर कर रहे हैं, उस जर्नी के प्रोसेस में भी हम लोग रोज सीख रहे हैं. वी आर स्टूडेंट्स लाइक यू. आई कंसिडर माई सेल्फ एज अ स्टूडेंट, बिकॉज आपको जब पढ़ाने आते हैं तो बहुत सारी चीज़ मैं खुद सीखता हूँ डेली, एवरी डे. एंड व्हेन आई कम टू द क्लास, मुझे लगता है कोई चैलेंज करे मुझे, कोई बच्चा कुछ नई ऐसी चीज़ पूछे जो मुझे पढ़ाने में मज़ा आए. दैट इज़ द एटीट्यूड वी हैव एज अ लर्नर. तो वो जर्नी में जो है ये इंपॉर्टेंट पार्ट ज़रूरी होता है. सो एज एन एस्पिरेंट आपको कुछ चीज़ों पे ध्यान देना है. फोकस ऑन रेगुलर क्लासेस, बी कंसिस्टेंट. संडे को टेस्ट होता है, आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल टेस्ट कम देते हैं. मेक इट अ ड्यूटी. टेस्ट में नंबर नहीं आएंगे वो सेकेंडरी है, बट टेस्ट आपको देना चाहिए. ओके. सेकेंड इज दैट बी वेरी ट्रू टू अस इन टर्म्स ऑफ शेयरिंग योर कंसर्न. अगर है मन में, अगर कहीं दुविधा है, कोई संशय है, कोई सवाल है, यू शुड टेल अस, बार्ज इन माई केबिन और रीच आउट टू द फैकल्टी इंडिविजुअली एंड टेल कि सर हमको ये प्रिपरेशन में जर्नी में दिक्कत आ रही है. बिकॉज ये जर्नी में अगर कोई 3-4 महीने बाद अगर आप प्रॉब्लम शेयर करोगे तो शायद वी माइट नॉट हैव द सोल्यूशन. आई गेटिंग माई पॉइंट? सो दैट इज द ऑब्जेक्टिव. एंड एक हमारा पर्सनल जो कनेक्ट है वो और अच्छा रहे. सब्जेक्ट टीचर्स विल कम, अपना एरिया लेंगे, तो हो सकता है कि फैकल्टी जिनसे आप आज मिल रहे हैं उनसे 2 महीने बाद किसी और फैकल्टी से मिलेंगे, बिकॉज सब्जेक्ट विल हैपन इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर. सो दैट इज ऑल. आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर दैट इस जर्नी को प्रेजवर्दी बनाना है, एंड प्रेजवर्दी बनाने के लिए हमें एक प्रोसेस फॉलो करना होगा, एक डिसिप्लिन फॉलो करना होगा. नाउ फर्स्ट आई विल आस्क सर टू टॉक अबाउट इंडियन पॉलिटी, और 2-2 मिनट हम लोग लेंगे, एंड देन विल क्लोज द सेशन. ऑलरेडी आप थक गए हैं काफ़ी, वी कैन अंडरस्टैंड. सर, First of all, very good wishes on this World Youth Skill Day today. Important day today. Indian polity, as we know, is very important as far as preliminary examination and mains as well as interview is concerned. इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कंफ्यूजन, क्योंकि आप डेली न्यूज़पेपर में पॉलिटी के किसी एस्पेक्ट्स को रोज पढ़ते हैं और घर के जनरल डिस्कशन में भी आता है और फ्रेंड्स के साथ भी डिस्कशन आता है. बट टेक्निकल इंडियन पॉलिटी कई चीज़ों को अनलर्न करने का प्रोसेस है और कई चीज़ों को लर्न करने का प्रोसेस है. देयरफॉर माय ड्यूटी इज टू मेक यू अनलर्न सर्टेन थिंग्स which over a period of time comes into your mind either through your friends or through even social media, and even some books are lead to some confusion somewhere. तो ज़रूरत है कि हम उसको अनलर्न करते रहें और लर्निंग प्रोसेस भी होगा. लेकिन
चीजें बहुत लॉजिकल है इंडियन पॉलिटी की। ऐसा एक भी सोचिए, कॉन्स्टिट्यूशन जब कोई बनाता है तो कितने बड़े लोगों ने पूरा लॉजिक लगा के बनाया होगा। सो इफ वी नो द फाउंडेशन, इफ वी नो द रीजन, रैशनल, आप जान जाइए सोशल जस्टिस हमारे इंडियन पॉलिटी का है, तो कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नहीं हो सकता है जो इंडियन सोशल जस्टिस के बेसिक स्पिरिट के अगेंस्ट हो। तो आपको ये समझ लेना पड़ेगा, यदि कोई क्वेश्चन में कहीं भी सोशल जस्टिस के अगेंस्ट कुछ आपको लगे तो समझिए ये गलत आंसर है। सो वी एज वी ग्रो एंड वी लर्न इन ए इंटीग्रेटेड वे, इंडियन पॉलिटी आइसोलेशन में नहीं पढ़ा जा सकता है। अभी तक हम लोगों ने देखा होगा कि सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो हम लोग का ये प्रोसेस चलता रहेगा। वी हैव कवर्ड क्वाइट अ बिट। अब कुछ बचा है जो बेसिक फाउंडेशन के बाद जो अब दरवाजे का खिड़की विंडो सब बचा हुआ है, वो अब हम लोग फिट इन कर रहे हैं। अदरवाइज स्ट्रॉन्ग पिलर्स एंड बेसिक फाउंडेशन हैज ऑलरेडी बीन लेड। थोड़ा सा ज़्यादा समय लगा होगा, बट आई थिंक इट विल हेल्प यू। एंड फॉर द न्यू स्टूडेंट्स, दे शुड नॉट फील एनीथिंग डिप्राइव्ड ऑफ। वो डिप्राइव्ड ऑफ हमारे सोशल जस्टिस का पार्ट ही है, वो होने नहीं देंगे हम। तो देयरफॉर यू विल हैव द अपॉर्चुनिटी टू लर्न देम। स्पेशल क्लास हो, एक्स्ट्रा क्लास हो, एफर्ट लगा के हो, घर पर हो, मोबाइल पर हो, जैसे हो हम कवर करके रहेंगे। एक्स्ट्रा क्लास भी करना होगा तो करेंगे। डोंट वरी अबाउट इट, इट इज पार्ट ऑफ माई पॉलिटी क्लास। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फ्रेंड्स। सो आप में से कितने लोगों को हिस्ट्री मतलब नॉन इंटरेस्टिंग लगता है? ऑनेस्टली रेज योर हैंड्स। ठीक है। सी अभी जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं ना, देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट सेइंग दैट देयर इज नो ड्रॉ इन दिस मैच। अभी नहीं पता चलेगा, 2-4-5 साल बाद पता चलेगा। यूपीएससी में ना ड्रॉ नहीं होता, या तो आप हारते हैं या जीतते हैं। इसलिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं सो यू शुड प्ले फॉर विक्ट्री, नॉट फॉर लूजिंग द गेम। क्योंकि 3 साल 4 साल बाद जब हकीकत मतलब जिंदगी से आपका पाला पड़ेगा तो आपको पता चलेगा कि मैं किस गलत जर्नी में आ गया। अगर सिलेक्शन नहीं होगा तो गलत साबित हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि मेटलिस्टिक युग है, उसमें आप हारेंगे या जीतेंगे। जैसे आपने देखा होगा, गिटार देखा होगा, तो गिटार को कितना पीरा हो रहा है ना, दुनिया को उससे मतलब नहीं होता है। उसकी आवाज़ कितनी आ रही है उसी से दुनिया कंसर्न होती है। सो इफ़ यू आर हियर टू लाइक क्रैक यूपीएससी, यू हैव टू क्रैक। Otherwise, there is a very important saying that nothing succeeds like success, and there is no bigger, है ना, sin that failure. This statement is about duplex, और ये पूरा का पूरा आपके बारे में भी लागू होता है। ठीक है, सफलता से बढ़कर कोई चीज़ सफल नहीं होती है, और विफलता से बढ़कर कोई दुनिया में पाप नहीं होता है। तो अगर आप विफल हुए तो हम कहने के लिए कह देते हैं कि हम लोग कुछ कर लेंगे या नॉलेज हो जाएगा। ठीक है, एक बहुत सेलिब्रिटी टीचर हैं, वो कहते हैं कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा, सुना होगा आपने। ठीक है, तो उस तजुर्बे के चक्कर में उन्होंने पूरा का पूरा लिटरली बर्बाद कर दिया एक बड़े से जनरेशन को। तो आपको उससे बचना है। तजुर्बा लेने के लिए तैयारी मत करिए, ठीक है, जीतने के लिए करिए या फिर मत करिए। तो उस पर कॉन्क्रीट चीज़ पे आपको काम करना होगा। सेकेंड थिंग अबाउट हिस्ट्री, अभी आपने देखा हो जो नई एनसीईआरटी है उसका नाम है थीम्स ऑफ हिस्ट्री। पहले का अप्रोच बिल्कुल अलग था, वहाँ पे आपको पर्सनालिटी सेंट्रिक हिस्ट्री पढ़ना था या हिस्टोरियंस पे जोर देना था, आप किसका हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। अभी वहाँ पे हिस्टोरियंस की चर्चा नहीं हो रही है नए एनसीईआरटी में। थीम्स ऑफ हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री इज नॉट अबाउट फैक्ट एंड फिगर, इट इज अबाउट द स्टडी ऑफ द फोर्सेज ऑफ कॉन्टिन्यूटी एंड चेंजेस। जिस स्टूडेंट को समझ में आ गया कि इतिहास की धारा कैसे चल रही है, वो हिस्ट्री को समझ पाएगा, और जो फिगर और फैक्ट्स के चक्कर में पढ़ेंगे वो हिस्ट्री कभी नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए हिस्ट्री बहुत ही ईजियर सब्जेक्ट है अगर आप हिस्ट्री के पढ़ने का तरीका समझ पाएं। एंड दैट्स वाई द स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड दे स्कोर वेरी वेल इन हिस्ट्री। लेकिन जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं वो समझ नहीं पाते हैं कि हिस्ट्री के साथ डील कैसे करना है। तो थीम्स ऑफ हिस्ट्री का मतलब यू हैव टू फोकस ऑन द थीम्स, द वेव्स ऑफ हिस्ट्री, कॉन्टिन्यूटी एंड चेंजेस। जहां आपने पूरा जनरेशन का नाम याद करना शुरू किया, अकबर, बीरबल और ये ऐसे जहांगीर और है ना हुमायूं और बाबर और यू कैन से औरंगजेब, वहाँ पे आप इंट्रैप्ट हो जाएंगे हिस्ट्री में, और यूपीएससी का वो डिमांड बिल्कुल नहीं होता है। तो अगर अच्छे से उसके मर्म को समझ लेंगे तो हिस्ट्री आपके बिल्कुल कंट्रोल में आ जाएगा। समझ रहे हैं? सो दिस इज ऑल टुडे, है ना, फॉर माय साइड। ओके, सो साइंस एंड टेक इंटरेस्टिंग है, इज इट? कैसा हूँ?
Okay, let me introduce myself. Myself, Appu Tiwari, passed out from NIT Bhopal 2011. Worked in one of the best companies of India, Reliance Power, General Electrical America, one of the vibration expert. 3 months expertise training in IIT Delhi. Finally back to UPSC interview and finally back into the coaching sector. ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ भी एक कहानी है. सबसे पहला कॉन्फिडेंस. मैं आया 28 ईयर्स के एज में, मुझे लगा कि यूपीएससी तो मैं ऐसे कर लूँगा. मैंने हकीकत में कोई एग्जाम कभी आज तक लाइफ में फेल नहीं किया विदाउट एनी कोचिंग. आईआईटी का प्रिपरेशन किया विदाउट एनी कोचिंग. फादर के पास पैसे नहीं थे. एक्सटेंडेड रैंक आया 4500, नहीं हो पाया. AIEEE, गेट सब यूपीएससी में के फेल हो गया. क्यों? मेरी खुद के डिसीजन से मैं 28 ईयर्स में आया. 4 साल था, एक डर था, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी. तो चलिए सब छोड़िए. जैसे सर ने कहा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, स्टूडेंट का यूपीएससी क्यों नहीं निकलता है? कभी आप लोगों ने सोचा है? फाउंडेशन बैच. जनरली फाउंडेशन बैच कंप्लीट करने में कितना समय लगता है? 1 ईयर, एट मैक्स 9 months to 1 ईयर. लेकिन आप अपने दोस्त लोग से जाके पूछिए जो 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनसे पूछिए आपका फाउंडेशन कंप्लीट है? वो बोलेंगे यार इकोनॉमिक्स पढ़ना है, कोचिंग कहीं और की, रेफरेंस बुक कहीं और करें, यूट्यूब की लेक्चर्स कहीं और देख रहे हैं, किसी सीनियर से कंसल्ट कर रहे हैं. तो ऐसा क्यों हो रहा है? हकीकत में बता रहा हूँ, एक फाउंडेशन बैच जो 1 साल में कंप्लीट होना चाहिए, 3 साल 4 साल तक लग जाता है. 4 साल के बाद क्या होता है? आप फाउंडेशन कंप्लीट नहीं कर पाते हैं. उसके साथ में क्या होता है? रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स योर पेरेंट्स बढ़ जाते हैं, वो क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं. तो फाउंडेशन बैच को सीरियस लीजिए. मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये फैक्ट है कि यहाँ पे चाहे कहीं भी हम चले जाएं, 50% स्टूडेंट्स आते ही नहीं है क्लास में. आते हैं तो क्लास में अटेंटिव नहीं रहते हैं. बिलीव मी, सबसे पहला डिसिप्लिन होता है. अगर आप 100% क्लास अटेंड कीजिएगा, 100% आइएगा, जिस समय डाउट है आपको उसी समय फैकल्टी से कंसल्ट कीजिए. आपका 1 साल में फाउंडेशन खत्म होगा, फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी. ये हम लोग सोशल मीडिया पे, अब फिर और बच्चे क्या करते हैं जो क्लास में समझ नहीं आते, वो सोशल मीडिया पे चले जाते हैं, इसका लेक्चर देखते हैं, उसका लेक्चर देखते हैं, इसका लेक्चर देखते हैं, नोट्स प्रिपेयर नहीं हो पाता है. तो फाउंडेशन के साथ साथ ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, साथ साथ की आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि नोट्स को अपडेट कीजिए. आपका एकमात्र सिर्फ एक ही नोट्स होना चाहिए, उसके बाद करंट अपडेट्स. ठीक है ना? रही बात मेरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, तो जिन बच्चों ने क्लासेस अटेंड किया होगा, कुछ बच्चों लोगों ने, इस बार क्वेश्चंस आए थे, आप लोगों ने देखा होगा 6 क्वेश्चंस मेरे डायरेक्टली जो हमने पढ़ाया था उससे पूछे गए हैं, जिन लोगों ने क्लासेस अटेंड किया है. मैं जनरल साइंस, मेरी साइंस एंड टेक इस तरीका से नहीं होती है जो जहाँ मतलब बाहर में जो पढ़ाया जाता है कि मतलब पूरी तरीका से टेक्निकल चीज़ें बता दी, बच्चे बेस भी नहीं समझ पाए. जैसे सर ने भी गिटार की एग्जाम्पल बताई थी. गिटार जो बजता है उसके पीछे बेसिक फंडामेंटल क्या है? रेजोनेंस. रेजोनेंस है, इज इट? उसकी गिटार की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है, उस फ्रीक्वेंसी पे हमें हिट करना पड़ता है तभी जाके साउंड प्रोड्यूस होगा, नहीं तो हम लोग हिट करेंगे तो पता नहीं क्या साउंड प्रोड्यूस होगा. तो मेरी क्लासेस जो होगी उसमें आपको पूरी प्रॉपर्ली जनरल साइंस 6 से लेकर 10th NCERT तक कराया जाएगा. उसके बाहर आपके क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे. ये मेरा कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरा तजुर्बा है. ठीक है ना? उसके बाद आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लासेस होगी. हाँ, अगर आप क्लासेस अटेंड करते हैं 100% तो क्वेश्चंस बनेंगे. हाँ, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर भी आपकी रह जाती है, आपको रेगुलरली करंट अफेयर से अपडेट करना पड़ेगा. मेरी क्लासेस फरवरी तक होगी तो आपको जनवरी तक करंट अफेयर मिलेंगे. मार्च और अप्रैल का करंट अफेयर आपको खुद से अपडेट करना पड़ेगा. ओके, सो थैंक यू. टेक अवे वो यही है कि अपने बुद्धि का प्रयोग करें, लेकिन हम पर विश्वास रखें. हम आपको, आप मुझे समय और मेहनत दें, हम आपको सफलता दें. यही है टेक अवे. ये देखिए लेट आए. मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ आपको. पढ़ाने के अलावा बाकी कुछ बोलते ही मुझे पहले हंसी आती, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत हैं बताने वाले बाकी चीज़ें तो. बट एक बात होती है, जब हम लोग पढ़ते थे तो कहा जाता था कि मुखर्जी नगर में आना बड़ा आसान है, यहाँ से वापस जाने का जगह नहीं होती. या तो एकेडमी जाएंगे या फिर कहाँ जाएंगे? घर जाएंगे. घर जाएंगे तो किस मुँह से जाएंगे? किसी रिलेटिव के जाएंगे तो और बुरी स्थिति. अब बस बदला इतना है कि वो मुखर्जी नगर अब ORN हो गया है, बाकी अभी भी स्थिति वैसी है. सो इट इज़ वेरी इजी टू कम हेयर. एवरीवन एस्पायर टू बिकम द IAS ऑफिसर. दे कम विद दिस ड्रीम, बट वेयर टू लेफ्ट फ्रॉम हेयर? देयर आर 2 ways only. One, you should directly go into the academy. That is the very beautiful part.
अदरवाइज यू विल स्ट्रक इन दिस मार्केट। सेम यही सड़क, यही मार्केट, अब यहाँ से जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हम चाहते तो हैं कि सबको आईएएस बना दें जितने भी क्लास में बैठे, बट वी नो दैट फ्यू आर एबल टू क्लियर ओनली। ये बहुत कड़वी सच्चाई है। अफसर बोलेंगे कि सर ऐसे बोलिए ना सभी बन जाएं, हम तो चाहते हैं सब बन जाएं, बट हमारे चाहने से नहीं होता है। बहुत कड़वी सच्चाई है, बहुत कुछ ही बच्चे बन पाते हैं। सेम क्लास, few are able to clear the exam but other are not able to clear the exam. Why so? So once you are able to identify the real cause behind it, your preparation is done. Your journey will be very smooth. Problem is students, they actually not able to understand where to go. अगर किसी को हम बोले कि एक ऐसे सीधा नाक की सिधाई में चलना है और वहाँ तक जाना है, अगर वो सीधा चलेगा तो बिल्कुल पहुँच जाएगा, बट अगर कोई इधर भी देखेगा उधर भी देखेगा, देन द जर्नी विल बी डिस्टर्ब्ड. दिस इज द रियलिटी ऑफ टुडे, राइट? So things are not so simple as you are taking it now. You will really understand the situation after 2-3 years. और ज़िंदगी सिखा तो सबको ही देती. दो ऑप्शंस हैं, या तो एक तो टाइम पे ही समझ जाओ, अदरवाइज बहुत पेन होता है. सीखना तो पड़ेगा, सिखा देगी ज़िंदगी. एक 40 साल की उम्र में जाके सीखोगे तो क्या फ़ायदा. कुछ और भी लेट सीखते हैं, 50 साल की उम्र में सीखते सब हैं, बट टाइम रहते सीखना ज़रूरी. तो अगर सीधा चलोगे तो समय में पहुंच जाओगे, डेस्टिनेशन में पहुंचोगे, अदरवाइज यू विल बी नोवेयर. नो, what is the right path? There are many ways to know that, but the best way will be taught by one who themselves move on that path. They say, sir, they have already cleared it, so they know that, right? और ये तो वो बता सकते क्या करो, but they cannot tell you what not to do. तो वो कौन बता सकते हैं क्या नहीं करना है? वो हम बता सकते हैं जो फेल हो गए, राइट? तो फेलियर से भी सीखना चाहिए कि क्या नहीं करना है, और जो सक्सेसफुल है उससे भी सीखना चाहिए कि क्या करना है. अब बच्चे करते क्या हैं कि जो सक्सेसफुल नहीं हुआ उससे तो ये सीख रहे हैं आजकल सोशल मीडिया पे भी करना क्या है. सीधी बात है, उनको ये बताना चाहिए क्या नहीं करना है. व्हाट इज़ माई फॉल्ट? इफ आई टेल यू दैट इज़ द बेस्ट थिंग आई कैन डू विद यू, दिस इज द बेस्ट जस्टिस आई कैन डू विद यू. और जो सेलेक्ट हुए हैं अगर वो ये बताए कि क्या करना है तो फिर आपके लिए ठीक रहेगा, राइट? सो एक्चुअली थिंग इज, बहुत से बच्चे पहले ही पढ़ के आते हैं. दे थिंक दैट सब्जेक्ट्स आर वेरी इजी, पॉलिटी इज वेरी इजी, दे थिंक दैट, बट इट इज़ नॉट सो इजी. इफ टीचर स्टार्ट्स गोइंग इन टू द डिटेल और डेप्थ, इट इज़ वेरी टफ सब्जेक्ट, really very tough subject. Same is for geography. Those who study the geography subsurface or just at the surface level, they think that rotation, revolution, that is in the geography. But you see, there are so much details. Wind movement, this is all about geography. So actually कोई चीज़ आपको अच्छी लगे, ज़रूरी नहीं है कि वही बस चीज़ है. कोई चीज़ ऐसा भी हो सकता है कि अच्छी नहीं भी लगे, बट रिक्वायरमेंट है सब्जेक्ट की, रिक्वायरमेंट है एग्ज़ाम की. So if things you don't like that, still there is need to understand them, because that is the requirement of this exam. So we will definitely go into the detail, because our target is to catch that single student in the class who is able to clear this exam, right? So just by explaining the few things or little things, we cannot do justice with those who deserve to be selected. So deliberately we have to go into the utmost depth of the subject, because UPSC is asking the question these days like that way, right? So now it is your duty to catch up with the pace of the class, to catch up with the depth of the class, and to follow those candidates who you think that they are ahead of you, right? So don't loosen the pace of other, increase the pace of yours. तो नवंबर शुड बी द टारगेट. नवंबर तक आपके सब बेसिक्स पूरे हो जाने चाहिए. पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स, द 4 फाउंडेशन शुड बी क्लियर एंड कंप्लीटेड अप टू नवंबर, राइट? और वो भी बिल्कुल डेप्थ के साथ. छोटी छोटी बातें तो पढ़ा के कोई भी पढ़ा सकता है. यू विल लाइक इट, यू विल एंजॉय इट, बट दैट विल बी नो यूज़ फॉर दिस एग्जाम, राइट? हाँ, क्लैरिकल एग्जाम के लिए तो ठीक है. तो क्लर्क बनना है तो बात अलग है. अब IAS बनना है तो थोड़ा तो पेन लेना पड़ेगा. और सबसे बड़ा पेन है, यू शुड बी अटेंटिव.
राइट. यू शुड बी अटेंटिव एंड यू शुड ऑलवेज, किसी बोला भी था, सर नहीं बोला था शायद, डेली क्लास आना जरूरी है. अगर आप एक भी लेक्चर मिस करते हैं, so you don't understand now, you will understand it later what you have actually missed, right? So डेली क्लास आइए, डेली लेक्चर अटेंड करिए. और एक डेकोरम होता है कि 10 बजे, अब तो हम बहुत लीनियंट हो गए हैं. नहीं, पहले एक समय ऐसा भी था कि मेरे क्लास में एंटर करने के बाद कोई आता था वो उसे गुस्से नहीं देता था. अब तो मतलब समय ऐसा है, डिमांड ऐसी है तो बोल देते हैं सर भी, इंस्टीट्यूट वाले भी, सर ठीक है आ रहे हैं बच्चे, आने दो. नहीं, अदरवाइज हम किसी को आने नहीं देते थे क्लास के बाद. इफ़ यू कैनॉट रिस्पेक्ट द टाइम, टाइम विल नॉट रिस्पेक्ट यू, राइट. सो दिस एग्जाम रिक्वायर सम रिस्पेक्ट. यू शुड गिव द रिस्पेक्ट टू द एग्जाम, अदरवाइज द एग्जाम विल नॉट रिस्पेक्ट यू. तो सबसे बड़ा रिस्पेक्ट का ये है, यू शुड बी डिसिप्लिन्ड, राइट. किसी IAS ऑफिसर को देखें या सर को ही देखें और मेरे को देखें तो अब डिफरेंस दिखता ही है. मतलब सर की कभी भी ऐसे शर्ट बाहर नहीं मिलेगी, कभी भी फोल्डेड नहीं मिलेगी, हमारी मिल जाएंगी, बिकॉज वी डोंट लर्न दैट डिसिप्लिन, राइट. सो यू शुड लर्न द डिसिप्लिन फर्स्ट. तो क्लास अगर 11 बजे है तो 11 बजे शार्प, 11 बजे, राइट. इसी तरह कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, किसी दिन तो सुबह जल्दी उठते हैं 5 बजे, जोश आ गया 5 बजे, फिर थोड़ा दौड़ के भी आते हैं, फिर पढ़ते हैं. 5-7 दिन फॉलो करते हैं, फिर कोई नई वेब सीरीज आ जाती है तो रात भर वो वेब सीरीज देखते हैं. 2 दिन का ही तो गैप है. गैप्स आर रिक्वायर्ड, रिलैक्सेशंस आर रिक्वायर्ड, बट यू नो दैट जो गैप्स भी चाहिए होते वो भी प्लान्ड गैप होने चाहिए. कि PT हो गया, उसके 2-3 दिन मैं रेस्ट लूँगा, या 15 दिन में पढ़ाऊँ, 2 दिन मुझे गैप लेना. अगर आप अनप्लान्ड गैप्स ले रहे हैं, कभी रात को जग रहे हैं, कभी दिन में जग रहे हैं, इट मीन्स यू आर नॉट डिसिप्लिन, यू आर नॉट गिविंग रिस्पेक्ट टू दिस एग्जाम. तो एक टाइम के साथ ही सब चीज़ें होती हैं और टाइम का रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है. तभी आप इस एग्ज़ाम को रिस्पेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज सीख तो जाओगे ही. तो वो आप पे डिपेंड करता है कब सीखना है, जल्दी सीखना है, लेट सीखना है, वो आप पे डिपेंड करता है. वी आर हेयर टू टीच यू ओनली, राइट. थैंक यू. So I'll thank all the esteemed faculties sharing their inputs about the journey of CSE, and not much complicating it further. Process पे काम करिए, and the process is keep it simple, keep it basic. UPSC is exam which requires definitely basic discipline, a very strong a sense of belief that you can do it, and your background will not decide कि आप future क्या करेंगे. तो यूपीएससी में अगर आपका बैकग्राउंड एकेडमिकली अच्छा है नहीं है, दैट इज सेकेंडरी. आई हैव सीन पीपल फ्रॉम वेरी एवरेज बैकग्राउंड मेकिंग इट बिग, एंड आई हैव सीन पीपल फ्रॉम द टॉप नॉच कॉलेजेस दे कुड नॉट क्लियर द एग्जाम. सो आपकी जर्नी में जो आउटकम है वो आप तय करेंगे. आपका सेल्फ डिसिप्लिन, आपका प्रोसेस, द एफर्ट दैट यू आर पुटिंग, द सेंस ऑफ अर्जेंसी यू ब्रिंग टू द प्रोसेस, द काइंड ऑफ सिंसियरिटी यू, एज आई सर मेंशन्ड अबाउट द रेस्पेक्टिंग द प्रोसेस. ओके, सो उस प्रोसेस को पहले समझना, उसको बनाना, देन उसको रेस्पेक्ट करना. जैसे घर बनाते हैं तो एक एक ईंट अगर अलाइंड होती है तभी एक अच्छी दीवार खड़ी होती है. द सेम थिंग विल मैटर हियर एज वेल. सो सिंस यू आर डूइंग अ वेरी बेसिक फाउंडेशनल क्लास, ऑल ऑफ यू, मेक श्योर दैट यू इन्वेस्ट इन द प्रोसेस. कीप इट सिंपल, एज आई मेंशन. प्राइमरी सोर्सेज को पढ़िए, अच्छे से पढ़िए. मेक श्योर द क्लास नोट्स आर प्रिपेयर्ड वेरी थरली, बिकॉज दीज नोट्स विल कैरी टिल द एंड ऑफ द जर्नी. मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ. आई वॉज इन IT एंड मैंने भी तैयारी 28 की एज में स्टार्ट किया था, ठीक है. सो 28 की एज में तैयारी तो नहीं स्टार्ट की थी, एग्ज़ाम दिया था. आई गेव माई फर्स्ट अटेम्प्ट व्हेन इन 2010. बट उससे पहले एग्ज़ाम की समझ इसलिए हो गई थी बिकॉज एग्ज़ाम को समझने का बहुत प्रयास किया था. जब आप एग्ज़ाम को समझने का प्रयास करते हैं, इफ़ यू आस्क द राइट क्वेश्चन, आपको राइट इन्फॉर्मेशन मिलना शुरू हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, सर ने कहा कि व्हाट नॉट टू डू, तो व्हाट नॉट टू डू तो बहुत सारी लिस्ट बन जाती है. अब व्हाट नॉट टू डू है तो मतलब उसका ऑपोजिट साइड व्हाट टू डू होगा नेचुरली, तो आप उस पर फोकस करते हैं. तो मुझे कई लोगों ने इस बात, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल जो मुझे एक, व्हेन आई फर्स्ट वन ऑफ माई मेंटर्स, ही टोल्ड मी दैट सी दिस एग्जाम इज अबाउट वेरी गुड इफेक्टिव कम्युनिकेशन.
तो आपको लिखने पे अच्छा काम करना है, एंड यू शुड बी एबल टू कम्युनिकेट प्रॉपरली। ये बात घर कर गई, मन कर गई, तो नेक्स्ट डे से पढ़ने के साथ साथ लिखना भी साथ साथ स्टार्ट हो गया। लिखना नहीं आता था बिकॉज नेचुरली none of us, more than 95%, 98% people don't know how to write, है ना। सर मेंशन लर्निंग इज इजी, अनलर्निंग इज डिफिकल्ट। तो अनलर्न करके आए थे हम, लर्न करके आए थे कि लिखना नहीं है ना। 12th के बाद लिखना नहीं है, इंजीनियर बन के लिखना नहीं है। बट यूपीएससी इज अबाउट राइटिंग, कम्युनिकेशन। लिखे, यू लर्न बाय डूइंग, यू मेड मिस्टेक्स, एंड इवेंचुअली जब पहला अटेम्प्ट दिया तो प्रीलिम्स किसी तरह से निकला। मेंस इसलिए निकल गया बिकॉज किसी मेंटर ने एक सही इनपुट दिया था और उसको हमने बहुत सीरियसली ले लिया था, एंड प्रिपरेशन पूरी तैयार भी नहीं थी, फिर भी मेंस निकल गया। आई एम टेलिंग यू, बट देयर वर सम मिस्टेक्स व्हिच वर मेड जस्ट बिकॉज द इनपुट्स वर नॉट टेकन एट राइट टाइम। तो हर जर्नी की अपनी एक स्टोरी होती है, सक्सेस स्टोरी होती है, और स्टोरी ये भी होती है भी क्यों नहीं हुआ। हम लोग संभावनाओं पे काम करते हैं, लाइफ इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी, बट अगर प्रिपरेशन अच्छी होगी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन वुड बी वेरी हाई। एंड द मोमेंट यू स्टार्ट पुटिंग द राइट प्रोसेस एंड राइट एफर्ट, और वो प्रोसेस एफर्ट बड़ा इंडिविजुअल होता है बिकॉज प्रिपरेशन इज वेरी पर्सनलाइज्ड, बट अगर वो प्रोसेस स्ट्रैटेजी अगर फॉलो होता है, मैं आपको शर्तिया इस बात का विश्वास दिलाता हूँ कि प्रीलिम्स निकलता है, मेंस निकलता है, इंटरव्यू कॉल आती है, सिलेक्शन भी होता है। कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हो सकते हैं जो हम, जिसके बारे में शायद वो एबरेशंस हैं लाइफ में, हमेशा रहते हैं। ओके, सो दैट वी कैन नॉट चेंज, बट वी कैन डेफिनेटली मेक अ रियल एफर्ट। पर अपने आप से हमेशा एक सवाल पूछिए कि क्या इस प्रोसेस को हम सही फॉलो कर रहे हैं, एम आई डूइंग द राइट थिंग। एंड वेन एवर यू डोंट गेट द राइट आंसर, और वेन यू नॉट श्योर अबाउट द आंसर दैट यू आर गेटिंग, प्रोबेबली दैट इज वेयर वी कम इन टू द पिक्चर। आइए हमसे पूछिए कि ये सही है क्या, हमको इस अप्रोच को फॉलो करना चाहिए, बिकॉज द अश्योरेंस अबाउट द जर्नी जो आप एफर्ट कर रहे हैं वो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा और आपकी जर्नी बहुत स्मूथली चलेगी। Preparation is about understanding things, assimilating things, and communicating very effectively in long run. Prelims is about knowledge and application, and mains is about effective communication, because आप mains देते हो तो knowledge तो आ जाती है, but mains is a different game altogether. तो इन सारी nuances पे पहले foundation को develop करेंगे, parallelly we'll try to develop the basic skills, then prelims foundation, then mains foundation, and then we move to the advanced level. तो शुरू में चीज़ों को basic रखिएगा, keep it very simple. प्राइमरी सोर्स को पढ़िए, एनसीईआरटीज पढ़िए, एज विनीत सर हमेशा कहते हैं सरकारी एग्जाम है, सरकारी किताबें पढ़िए, एंड इट मेक्स सेंस, इट मेक्स वेरी मच सेंस। वो इग्नू का मटेरियल हो, वो एनआईएस का मटेरियल हो, या फिर एनसीईआरटीज हो, दे बिकॉज यूपीएससी चाहेगा कि उन प्राइमरी सोर्सेज से आप पढ़िए, और जब आप चीज़ों को बेसिक रखते हैं तो चीज़ें फिर आसान भी हो जाती हैं। एंड देन अ टाइम विल कम वेयर यू हैव अ जजमेंट एंड विजडम टू नो व्हाट विल वर्क एंड व्हाट विल नॉट वर्क। तो हमारा उद्देश्य सिर्फ ये नहीं रहेगा आपको हम पढ़ाएं, बट हम चाहेंगे आप सेल्फ सफिशिएंट बन जाइए आफ्टर फ्यू मंथ्स, वेर यू अंडरस्टैंड कि ये करना है और ये नहीं करना है। ओके, सो आई होप वी टुक लॉट ऑफ टाइम, थोड़ा सा ज्ञानवर्धक भी रहा और थोड़ा सा प्रीची भी रहा। ओके, बट एट टाइम्स दैट दीज इनपुट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी। तो थैंक्स फॉर योर टाइम। सर की क्लास है, बट इट विल स्टार्ट, विल टेक अ ब्रेक एंड देन विल स्टार्ट, राइट। एंड चलिए, थैंक यू वेरी मच। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर योर टाइम एंड एफर्ट।